Let me also put let me just put my laptop on charge. Second. Okay. All right. Hello, Tawfiq. Hello, Chandra. So guys, this is the last theoretical lesson that we are going to do in this first batch. The second batch will start afresh in the first week of Feb or so. And the next two classes that we'll take, will be during the live market. So I'm hoping that I will cover all the things I need to cover today. If it feels a little rushed, let me know. The thing is that volatility trading, so we've had something like what, seven? This is class number 7, right? So we've had 6 classes, and honestly, matlab, this is such a deep topic that every class can have a course on its own. Okay, so um, my goal has been to give you enough so that you can start thinking about option trading wearing a volatility lens. It's obviously, um, but this is like, अब ये मान के चलो कि this is, um, अभी आपने बस addition सीखी है, addition, subtraction, multiplication, division सीखी है अभी, उसको use कैसे करना है, and there is just so much other stuff that is actually built on top of this, right? So this entire course has been volatility trading basics, and all of them are building towards putting on a relatively low risk trade, um, while thinking about volatility, while using only volatility as a means to determine whether I'm going to make money or not in this particular trade. Okay. Um, so the next class will be, if you have questions, just feel free to throw them in the chat. But the next class will not happen next week. It'll happen the week after that on Monday, and that will happen during market hours. And इसका reason है, मैं वैसे Friday को भी ले सकता था, but budget is on Saturday. So basically, all of January walls are depressed, and all volatilities post first Feb are high, right? So because of this sort of mismatch in the term structure, because of this particular event, um, the concept that I want to show you guys is not really going to be relevant. And the concept is, hey, we are trying to exploit VRP, the volatility risk premium. But because of that particular event in the middle, um, there is this event volatility, and the trade isn't going to be purely, if we try to sell an option in Feb expiry, um, any Feb expiry has that event, the budget event embedded inside it, right? So there's that event volatility us din ki, uh, and that is being priced in the option. So the options are expensive, but they're expensive because there's an anticipation that Nirmala ma'am will do something, will say something or the other, that will move the markets on budget, right? So event trading is its own sort of, um, yeah, event trading is its own sort of trading style or trading strategy. And there's a lot of things that you can do with IV and RV with events as well. But that's outside of the scope of this course, right? This course is just about giving you an introduction on implied volatility, realized volatility, looking at options with a volatility lens, and using learning enough so that you can start putting on a trade with this particular volatility lens. Okay. So let me just share the PowerPoint with you guys, and um, I have written some code as well. I'm going to show you guys today. Um, class 7, share.
and there have been some new guys who've entered the Discord community, right? So for you guys, the new batch will begin again. You know, the recorded lessons of the first batch are here, but the new batch will begin next first week of Feb. So the first Friday of Feb, we'll probably have the first session there. So anyway, guys, um, you guys getting a message on chat. One sec. Yes, sir. All right, Sairaj. Okay, so ये सबको याद है यार, डेल्टा हेजिंग अगर हम करते हैं, डेल्टा न्यूट्रल हम करते हैं, किसको याद नहीं है बताओ यार मेरे को. आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दिस, दैट डेल्टा हेजिंग का इफेक्ट क्या होता है जब हम डेल्टा न्यूट्रल करते हैं अपने ऑप्शन पोर्टफोलियो को. डेल्टा जस्ट मीन्स माई पोजिशन डेल्टा टेल्स मी हाउ मच इज माई पोजिशन बिहेविंग लाइक द स्टॉक. ठीक है. नाउ वी एज वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स, we don't have an opinion on stock. We don't know how to predict stock. I mean, you could, but I don't. So I never have an opinion on stock. So since I don't have an opinion on stock, um, Rohit, if you're, I think you should watch the first 6 videos, and you also have the ability to join the second batch, which is free, of course. Like you guys can join as many batches as you can, as you want to, right? So if this is your first class, guys, this is class number 7. ठीक है ना. तो क्लास 1 से हम फिर से शुरू करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ फेब में. फील फ्री टू स्टिक अराउंड इफ यू वांट टू. बट या, इफ यू वांट टू सिट इन दिस क्लास, दिस पर्टिकुलर वन, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. डेल्टा हेजिंग मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया लास्ट वीक आपको दिखाने के लिए, दिखा के कि अ डेल्टा हेज पोर्टफोलियो ऑफ ऑप्शंस वर्सेस, और रादर अ पोर्टफोलियो ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे आप डेली हेज कर रहे हो वर्सेस आप हर दूसरे दिन हेज कर रहे हो वर्सेस आप हर 30th डे पे हेज कर रहे हो, अपने अपनी पोजीशन को न्यूट्रलाइज कर रहे हो. आपका जो डिफरेंस है इन ऑल दोज सिमुलेशन, सो वी एसेंशली रैन सिमुलेशंस where we played this game. In one simulation, we said that we're going to delta hedge every day. In another simulation we said we'll delta hedge every second day. Okay, so I'm carrying a little bit of that delta risk in the second simulation. My last simulation was I'll only hedge once, right? In my 30-day option or in my 40-day option, I'll only hedge once. I'll only delta hedge once. And what we saw was that the average PNL was close, sort of like close to each other for all those different simulations. But what changed was the variance of my PNL. And we all also remember, guys, that variance is bad, right? We don't necessarily want to, we don't want to have variance in our portfolio. Chat. ठीक है. Sometimes you have to deal with variance. Sometimes you can't get rid of variance. Like it could be that, hey, you don't get to delta hedge every day. Like I don't delta hedge every day, obviously. My positional trades. So another way of managing that variance could be just position sizing, right? Where you'll be like, okay, you know what, I won't size it. I won't size my position. Like I'll lower the size of my position. That way my variance itself will decrease. Okay. So we know that delta hedging will reduce the variance of our PNL. And we also know that, yeah. So gamma, we talked about gamma as well in the last class. And I didn't do a very good job of showing you guys, if I'm an option buyer, what happens to my gamma. So I'm going to show that to you today. That one sec. Yeah, so let me just start with what is gamma, right? Who remembers what gamma is? Trying to make it a little interactive. चैट में डालना है क्या है गामा.
या सो इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा. ठीक है. डेल्टा मेरे को बताता है कि यार डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा, कुशल ग्रेट. तो डेल्टा मेरे को बताता है कि मेरा पोर्टफोलियो जो है, एग्जैक्टली द रेट ऑफ, Tanmoy has the most precise definition, which is rate at which the delta changes with respect to the underlying price, right? So as delta can change because of a lot of reasons, but if the delta changes because there's a change in the underlying price, that is what your gamma is, right? And your delta is never going to be stable. It's never going to be the same. It'll keep changing as the underlying price changes. As different factors change, your delta will also keep changing. This is kind of the territory of options, right? Options are messy. They're not linear instruments. They're convex instruments. There's a lot of interrelation between the different factors that affect option prices. So anyway, gamma measures the change in the delta. Yeah, well done, Tanmoy. Speed is delta, acceleration is gamma. Love it. So when we are long options, when we bought options, it's good for having gamma is good for us. Gamma works in our favor. Okay, so if the market goes down, your position starts behaving more and more like a short position. If a market goes up, if the market goes up, your position starts behaving more and more like a long stock position. That is the power of gamma. And I showed you guys that on the strategy builder. I've created an example in Excel today that I'll show you guys, and I'll make an app out of it as well, so you guys can actually interact with it on the browser. It kind of works the opposite way if you've sold options. अगर option बेचे हुए हैं आपने तो आप short gamma हो, तो उसमें क्या होएगा, if the market goes up, then you'll start getting more and more short. Your position will start behaving, your delta becomes negative, and your position will start behaving more and more like you've sold the stock, right? And it's not good for us to short sell something. मान के चलो मैंने फ्यूचर बेचा हुआ है एंड मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, तो मेरी जो फ्यूचर पोजीशन है वो तो लॉस में आ जाएगी, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गामा विल डू. As the stock keeps going up, as if Nifty future keeps going up and you have a short option position, your option position will start behaving more and more like you sold a future, right? And it works the other way around. If you sold an option, let's say you sold a Nifty option, and call or put doesn't matter. You've sold an option. Let's just say you've sold a straddle. Okay, you've sold a Nifty straddle. As the market starts going down, you'll start behaving, or your position will start behaving more and more like you had bought shares in Nifty. You had bought the Nifty future. So that is, it's working against you, right? So movement works against the option seller. It works in favor of the option buyer. And this movement, when I say movement works in favor of the option buyer and works against the option seller, what I mean by movement is this gamma. This gamma is the reason why it hurts us when we've sold options and the market moves. The gamma is the culprit. So, okay, next, let me actually just show the Excel to you guys. What I've done here, so what I've done here, guys, is I've simulated somebody's chat. Yeah, absolutely, Kushal. So, is it possible to check gamma live? In fact, strategy builder pe dikhta hai aapko gamma. Actually, I don't really look at the absolute number in the gamma when I'm putting these positions on and I'm managing risk. What I care about is, am I long gamma or am I short gamma? ठीक है, that is, क्योंकि eventually क्या है, जो आपका at this stage जो आपका risk है ऑप्शन पोजीशन में, वो तो डेल्टा से आ रहा है, राइट? मैं इतना डेल्टा लॉन्ग हूं, तो टू गेट रिड ऑफ माय डेल्टा, I look at delta and I see that, hey, I don't want to have this, I don't want my position to behave like these many shares. And that's when I decide, I usually have like a delta threshold, and I'll say, you know what, I'll just trim my delta. That's in fact what I did. That's what I did on Friday. Was it Thursday? That day where the market moved a lot.
I didn't really trade anything, and then the next day I trimmed some deltas. Right. So let's. So I've created these different paths. ठीक है ना, ये स्टॉक शुरू हुआ था 100 पे, and in 1 year, the realized volatility that I put here is 32. ठीक है ना, so with a 32 wall, these are the different paths that the underlying took. ठीक है, so you'll see there was one path where the underlying was very close to 100, where it started, जहां शुरू हुई थी वहीं पे खत्म हो गई, right? Then एक ऐसा path था 32 wall के साथ, 32 realized wall के साथ, जो 180 तक पहुंच गया, and एक था which was the lowest one was, and these are 10 paths that I created. ठीक है, so notice guys, all of these paths are 32 realized volatility. That one number, I ran 10 simulations and it gave me entirely different evolution of the underlying. ठीक है, so why am I saying this? Because I'm going to show you an Excel in which I've created a very hypothetical path, like a very a path that you're probably never going to see in the real market. Like these look more like the real market. Okay, but like I've created a sort of toy path to show you guys how this delta hedging works. Okay, so let me just share that. सॉरी फॉर द फॉर्मेटिंग गाइस, मैंने यार ये शीट ना मॉर्निंग में बनाई थी, एंड फॉर सम रीजन एंड आई फॉर्मेटेड इट वेरी नाइसली, एंड आई हैड लाइक अदर थिंग्स ओवर हियर एज वेल, बट I don't know, I forgot to save it, and then I had to shut down my laptop, so it didn't get saved. So abhi maine, in fact, last 20 minutes I've quickly made it again. Let me just increase the font size. इसको थोड़ा सा क्लीन करूंगा मैं. All right, so you guys can see my screen, right? See the Excel. जूम के कंट्रोल्स हटाएं भाई, यहाँ से हटा दिए. ठीक है, तो इसको एक बार प्लॉट करते हैं, प्राइस को एक बार प्लॉट करते हैं. ठीक है, इंसर्ट चार्ट लाइन प्लॉट. तो ये मैंने बड़ा स्टूपिड सा प्राइस पाथ बनाया. ठीक है, मैंने बोला है चल यार, द प्राइस इज बेसिकली पिंग पोंगिंग बिटवीन 101 एंड 99. मैंने बोला मेरे पास 30 डेज हैं एक्सपायरी के. ठीक है, जब मैंने ये पोजीशन बनाई तो मैंने एक, मतलब मान के चलो मैंने कॉल खरीद लिया. ठीक है, तो जब मैंने कॉल खरीदी तो उस कॉल का प्राइस था ₹1.94. ठीक है, या डॉलर्स में चलते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली आई स्टैंडर्डाइज दिस टू डॉलर्स. तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स के आई एम अज्यूमिंग दैट माय करेंसी इज इन डॉलर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये जो मेरा स्टॉक है 101.99 101.99 101.99, जस्ट पिंग पोंगिंग बिटवीन दैट. ठीक है, विद 30 डेज टू गो एंड अ वॉलेटिलिटी ऑफ आईवी ऑफ 10%. ठीक है, ये मेरी 10% आईवी है. मैंने इसकी कॉल की प्राइस निकाल दी, यार ये कॉल का भाव क्या है. ये क्या हो गया? देयर यू गो, दैट्स बेटर. ठीक है, तो मेरी कॉल का भाव क्या है? मेरा कॉल का भाव था $1.94. ठीक है, रुपीज में भी कर सकते हैं, डजंट रियली मैटर. ठीक है, यहाँ पे आते हैं. लॉट साइज है मेरा 100, स्ट्राइक प्राइस है मेरी 100. तो मैंने क्या किया है, मैंने 100 की स्ट्राइक की एक कॉल खरीद ली है जिसकी प्राइस थी $1.94, एंड जो मेरी अंडरलाइंग है वो ऐसे बिहेव करेगी. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डेल्टा हेज नहीं करता एंड लास्ट डे मेरा ये है, लास्ट डे पे 101 पे क्लोज होती है, तो मान के चलो मेरा लॉट साइज है 100.
ठीक है, तो $1.94 का मैंने लिया था, $194 बेसिकली प्राइस इनटू लॉट साइज मैंने पैसे दिए इसके। ठीक है, मेरे को बताओ यार, अगर मैं इसको डेल्टा हेज नहीं करता, अगर मैं कॉल लेके बैठ गया, मेरी आईवी है 10%, ठीक है, 10% की आईवी पे मैंने ये माल खरीदा है, एंड रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी जो है मेरी इस अंडरलाइंग प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पे, हु रिमेंबर्स हाउ टू कैलकुलेट रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी? चैट पे डालना। ये मेरी रियलाइज वॉलेटिलिटी है 32%। ठीक है, यू गाइज नीड टू रिवाइज चैप्टर, लेसन 2 था मेरे ख्याल में, इफ यू गाइज हैव, व्हाट आई ऑल्सो डू इज गाइज, एक बार यार सारे लेसन देखो, एंड अपने जो डाउट्स है ना सारे मेरे साथ चैट में शेयर करो, एंड व्हाट आई डू इज आई डू लाइक अ डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल्सो। Yeah, so what I'll do is, I'll probably also do a session where you guys can follow along in Excel with me. I'll be like, चलो यार Excel खोलो, चलो सब realize volatility निकालते हैं। मे बी एक बोनस क्लास में ऐसी करूंगा कि I'll get you guys to calculate realized volatility with me. What we'll do is we'll download the price of Nifty from NSE की वेबसाइट, एंड उसके बेसिस पे क्लोज टू क्लोज रियलाइज वॉलेटिलिटी हम निकालेंगे, एंड उसमें फिर मैं तुमको 2-4 क्विजेस दूंगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एनीवे मेरी 32 रियलाइज वॉलेटिलिटी है, मेरी आईवी जो थी वो 10 थी, तो ऑन एवरेज मैं पैसे कमाऊंगा इसमें, राइट? अगर मैंने कॉल खरीद के रखी है, राइट? लेकिन अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसको डेल्टा हेज नहीं करता, तो मेरा क्या पीएनएल होएगा ऑन $1.94 की मैंने ये 1 रुपी 94 पैसा बोल देते हैं, मैं खुद को ही कंफ्यूज कर रहा हूँ, 1 रुपी 94 पैसे की मैंने कॉल खरीदी है ये। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है 100, क्या होएगा मेरा पीएनएल? लेट मी पुट इट ओवर हियर, स्लाइड में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियरली समझ आ जाए। सो लेट्स डू दिस। ठीक है, बोलता हूँ नो हेजिंग, तो लेट्स पुट इट दिस वे, चैट में डालना गाइस, स्ट्राइक इज 100, स्टॉक प्राइस इज 101, ठीक है, कॉल प्राइस इक्वल्स टू $1.94, 1.94, ठीक है, स्टॉक प्राइस एट DTE30 is this, and then stock price at DTE0 is also 101। अब मेरे मेरे को बताओ, what's my PNL no delta hedging? What's my PNL at DTE0? Sorry, DTE0, 0 DTE is this, and 30 DTE is 10। अरे मैं शेयर ही कुछ और कर रहा हूँ। हाँ, नाइस, हर्षित हैज द राइट आंसर। एनीबडी एल्स? सब कुछ तो जवाब दो। आई हैव लाइक 13-14 पीपल इन द क्लास, आई वांट एटलीस्ट 14 रिस्पॉन्सेज गाइस, और 13 रिस्पॉन्सेज एक तो मैं ही हूँ, सब डायरेक्ट मेरे को आ रहा है, कुछ तो तुक्का मारो। अक्षांश,
You got it. तो देखो भाई, मेरी स्ट्राइक प्राइस है 100. The stock price is at 101. So my call is in the money by 1 rupee, right? So इसको अगर मैंने ब्रेक डाउन करना है तो इसकी इंट्रिंसिक है 1 एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू है इसकी 0.94. ठीक है, तो ये मेरी टाइम वैल्यू है एंड ये मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट? इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं. ठीक है, तो अब एक्सपायरी पे अगर स्टॉक प्राइस 101 है तो मेरी, दैट्स राइट टॉन, कॉल प्राइस एट एक्सपायरी is going to be 1, which is my intrinsic value, right? And intrinsic value होगा मेरा 1, extrinsic value होगा मेरा 0. तो मैंने 1 रुपी 94 पैसे की ली थी, $1.94 whatever, $1.94 का मैंने लिया था, एंड 1 रुपी इसकी अब वैल्यू, $1 इसकी अभी वैल्यू, तो 94 सेंट्स का मेरा नुकसान है, राइट? एंड दिस इज इफ आई एम नॉट डेल्टा हेजिंग. ठीक है, एंड वही हमको हमारी एक्सेल में दिख रहा है. लेट मी शेयर दी एक्सेल अगेन. ये मेरा प्राइस है, ये मेरा प्राइस का पाथ है, पिंग पोंग हो रहा है, एंड अबे कहाँ गया, एंड ये मेरा 0 DT है. 0 DT पे मेरी प्राइस थी 101. मेरे को यहाँ पे 94 का लॉस दिखा रहा है ये. 94 मीन्स व्हाट? 94 इज 0.94 इंटू 100. ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, बोलते हैं चल यार लेट मी एक्चुअली डेल्टा हेज. मैं हर रोज इसको डेल्टा हेज करूंगा. तो मेरी प्राइस ऐसे पिंग पोंग कर रही है, मैंने कॉल खरीद के रखी है. ठीक है, तो यहां पे मेरी ऑप्शन की प्राइस है, यहां पे मेरा डेल्टा है. जब भी प्राइस ऊपर नीचे जाती है मेरा डेल्टा चेंज होता है. 101 पे मैं इन द मनी हूं, माई डेल्टा विल बी मोर देन 50. 99 पे, when the price is 99, when the price is 99, my delta becomes 48. Again 101, delta goes back to 55. 99, delta goes to 48. ठीक है, तो मेरा डेल्टा भी पिंग पोंग कर रहा है क्योंकि स्टॉक मेरा पिंग पोंग कर रहा है, टाइम टू एक्सपायरी मेरी कम हो रही है. तो उसके बेसिस पे अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे बोला कि यार मैं इसको डेल्टा हेज कर रहा हूं, 100 मेरा लॉट साइज है, तो मैं पहले शुरू करूंगा, अगर मेरा स्टार्टिंग डेल्टा वो 55, सो आई स्टार्ट विद, आई सेल 55 शेयर्स अलोंग विद इट, ताकि मेरा पोजीशन डेल्टा 0 हो जाए. ठीक है, क्लियर ऑन दिस गाइस? नाउ एज द मार्केट गोज डाउन, 101 से 99 आया ये, तो मेरा डेल्टा हो गया -7.23. ठीक है, तो अब मैंने बोला चल यार मैं इसको फ्लैट करना है मैंने, तो मुझे 7.23 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे. उसको मैंने न्यू हेज के कॉलम में डाल दिया. ठीक है, रिमेंबर गाइस, आई एम लॉन्ग अ कॉल हियर. तो जब मार्केट नीचे गई है तो मैं शॉर्ट हो गया हूं. अब मार्केट वापस ऊपर जाएगी, 99 से 101 वापस आई, तो मेरा डेल्टा लॉन्ग हो गया, फिर से 7.28 लॉन्ग हो गया मैं फिर से. 101 पे मैं फिर माल बेचूंगा. ठीक है, फिर वापस नीचे नीचे जाएगी 99, मैं फिर शॉर्ट हो गया.
मैं शॉर्ट डेल्टा हूं तो मतलब मुझको खरीदना पड़ेगा माल, आई हैव टू बाय इट, तो मैं बाय करूंगा। तो बेसिकली जैसे ऊपर जा रही है मैं सेल कर रहा हूं, जैसे नीचे जा रही है मैं बाय कर रहा हूं। एंड वो करते करते मेरा एक हेजिंग पीएनएल आ गया है यहाँ पे। हेजिंग पीएनएल का जो मेरा समय मैं हर रोज कर रहा हूँ, ये हर रोज एंड ऑफ द डे पे मैं बोल रहा हूँ यार मैंने तो भाई हर रोज डेल्टा हेज करना। इनफैक्ट जब हम when we used to trade options, I said this in the last lesson as well, when we used to trade options our book used to have hundreds and thousands of option positions, एंड हमारा मैंडेट होता है भाई हर अंडरलाइन को हेज करना है, हमने हर अंडरलाइन को डेल्टा हेज करके हमने बुक क्लोज करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेली डेल्टा हेज करूंगा तो मेरा पीएनएल यहां आ जाएगा हेजिंग का। $374 मेरे हेजिंग के पीएनएल से हैं। ठीक है, अब लास्ट डे पे मेरा ऑप्शन था, मैंने $1.94 का लिया था, वो 94 सेंट्स पे जाके क्लोज हो गया। तो आ, तो अगर मैं डेल्टा हेज नहीं करूंगा मेरे को इतने का लॉस लगेगा, सॉरी $1 पे वो क्लोज हो गया, तो अगर मैं डेल्टा हेज नहीं करता तो मुझको इतना लॉस लगता। बट क्योंकि मैंने डेल्टा हेज किया है तो मेरी कमाई हो गई यहां पर। आर यू गाइस विद मी? एंड इन थ्योरी आई शुड हैव मेड मनी बिकॉज आई वाज सो राइट। मेरी आईवी 10 की थी, मैंने माल खरीद लिया, मैंने बोला यार ये बहुत सस्ती आईवी है। ठीक है, मैंने बोला यार ये बहुत सस्ती इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है, 10 पे मैंने खरीदी। लेकिन अगर मैं डेल्टा हेज ना करता तो मुझको फिर भी लॉस होता। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉन्ग रन में यस मैं पैसे कमाता, इन द लॉन्ग रन आई वुड हैव मेड मनी, राइट? बट बिकॉज आई एम डेल्टा हेजिंग हियर मेरा वेरिएंस रिड्यूस हो रहा है, एंड आई एम एक्चुअली एबल टू कैप्चर सम ऑफ दिस स्प्रेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, इवन दो ये जो पाथ है रियलाइज वॉलेटिलिटी का ये मेरे लिए फेवरेबल ना होता इस केस में। सो बैक टू मेरी जो सिमुलेशंस हैं, पावर पॉइंट शेयर, तो back to my simulations, right? These are all 32 wall moves. The underlying in all these 10 simulations has evolved according to 32 volatility. ठीक है, बट कभी ऐसा भी हुआ है कि यार ज्यादा नीचे चला गया, कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, एंड कभी ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल ही नहीं मूव किया। तो इन दिस केस डेल्टा हेजिंग हैज वर्कड फॉर अस। ठीक है, देयर विल बी सम केसेस इन विच डेल्टा हेजिंग विल नॉट वर्क फॉर अस। Can you guys think of a scenario where delta hedging will not work out for us? If we bought options, we are right about IV and RV. जहां पे अगर मैं डेल्टा हेज नहीं करूंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। नहीं, गामा ब्लास्ट में तो कमाऊंगा यार मैं। गामा ब्लास्ट होता क्या है यार, मेरे को ये बताओ, ये आप रिटेल लोगों की जो लिंगो है ना ये ट्विटर पे, गामा ब्लास्ट हो गया, इंजेक्शन आ गया। बेसिकली लेट मी एक्चुअली शो यू, वो भी मैंने बनाया था, वो फुल्ली कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं, बट ये एक और पाथ है। ठीक है, इस पाथ में क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रेट अप गई है, हर रोज ही अप गई है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, अरे शेयरिंग द रॉन्ग थिंग अगेन, एक्सेल पे आ जाते हैं। इसमें क्या है ना, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस, इसमें वी चेंज द सिचुएशन लिटिल बिट। मैंने बोला यार IV 10 है,
लॉट साइज 100 है, स्टॉक जो है वो अब ऐसे इवॉल्व करेगा. लेट मी प्लॉट दिस. ये ब्यूटिफुल स्टॉक, बस अप 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 अप, रोज ऊपर गया है. ठीक है. आ, मैंने 100 स्ट्राइक की कॉल खरीदी. 95 पे चल रहा था उस टाइम पे. कॉल थी 10 पैसे की, 30 days टू एक्सपायरी. ठीक है. अब इसमें मैंने क्या किया, एक सेकंड. इसको फिक्स कर देते हैं, रुको. क्या हो गया मेरे डेल्टा को. डेल्टा. बेयर विद मी गाइस, सॉरी. फॉर्मूला आगे पीछे हो गया इसका. सटल पॉइंट है. तो इस केस में देखो गाइस, in this case, had I not delta hedge, so let me plot this. We plotted this already, right? So 95 पे स्टॉक शुरू हुआ, 172 पे खत्म हुआ. Again, question for you guys, question for everybody. If I were not delta hedging, मैंने, let me add this to the slide so that you guys can see it again. ठीक है. It's easy to say. अबे, so strike is 100. Stock price at 30 DTE was 95. ठीक है. कॉल प्राइस मेरी थी 10 पैसा, 0.10. 10 पैसे की मेरी कॉल कॉल है, इसको 10 पैसा कर देते हैं. 10 पैसा. ठीक है. सस्ती कॉल थी मेरी. इंट्रिंसिक मेरी 0 है, एक्सट्रिंसिक मेरी 10 पैसा है. प्योर टाइम वैल्यू है. ओटीएम ऑफ डीप ओटीएम ऑप्शन खरीदा है मैंने. स्टॉक प्राइस एट 0 DT अब कितनी हो गई मेरी, 172. स्टॉक जस्ट वेंट एप शिट. ठीक है. अब कॉल प्राइस एट एक्सपायरी क्या होगी गाइस? कॉल प्राइस एक्सपायरी, एक्सपायरी वाले दिन क्या होगी? चैट में डालो प्लीज. थिंक अगेन तौन. Yes, Tonmoy is correct. Yes, indeed. Yogi, think again. स्टॉक 172 का है, स्ट्राइक 100 है, मैं लॉन्ग हूं. 95 रुपीज का स्टॉक था, 172 हो गया है. स्ट्राइक प्राइस मेरी 100 है. तो दिस विल बी डीप इन द मनी. 72. एक्सट्रिंसिक वैल्यू इसकी होगी 0. 100 कैसे आया अनमोल? इट्स, ब्रो, इट्स स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, राइट? एग्जैक्टली हर्षित, स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. कॉल है, कॉल बिहेव्स, कॉल का पीएनएल स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरी, मैक्स ऑफ दैट एंड 0. बिकॉज हमारी डीप इन द मनी हो गई है. तो
यहाँ पे मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है 72, एंड अगर मैं डेल्टा हेजिंग नहीं करता तो मेरा 72 इंटू लॉट साइज, मेरा लॉट साइज था 100, मैंने बोला 7200, मेरा पीएनएल होता है 7200 इन दिस केस, अगर मैं डेल्टा हेज नहीं करता। बट क्योंकि मैंने डेल्टा हेज किया, मेरा पीएनएल कितना हुआ, 7200 की जगह सिर्फ 216 हुआ। डेल्टा हेजिंग करने की वजह से, ये डेल्टा हेजिंग करने की वजह से 6900 का मेरा लॉस हो गया। अब इस लॉस को कैसे विजुलाइज करें? लॉस को ऐसे विजुलाइज करते हैं कि हम लॉन्ग गामा थे, राइट गाइस, वी वर ऑल लॉन्ग गामा। लॉन्ग गामा का मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जाती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम लॉन्ग हो जाते हैं, राइट। तो हम ये मान के अब ये शुरू करो कि यार हम 34 डेल्टा से शुरू हुए, वी स्टार्टेड विद 34 डेल्टा, तो हमने 34 शेयर्स बेच दिए, ठीक है, एट DT0 टू गेट डेल्टा न्यूट्रल। अब अगले दिन क्या हुआ, वो मार्केट ऊपर गई, तो मेरा जो 34 डेल्टा का ऑप्शन था वो 40 डेल्टा हो गया। अब अगर 40 डेल्टा हो गया और मेरी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डेल्टा मेरा 34 था, शॉर्ट 34 डेल्टा, तो मेरा 6 डेल्टा में और लॉन्ग हो गया। तो मैंने कहा चल मैं 6 शेयर और बेच रहा हूं। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर चली गई, मेरा 40 डेल्टा 47 डेल्टा बन गया। सॉरी, या यू गाइस कैन सी द एक्सेल, राइट। हाँ, तो मेरा 40 डेल्टा 47 डेल्टा हो गया। सॉरी, आई वाज नॉट, आई गेस आई वाज नॉट शेयरिंग दिस, राइट। तो ये मेरा सिचुएशन था। सॉरी, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ गाइस। आज 10-15 मिनट थोड़ी ज्यादा चलेगी क्लास, बिकॉज आई वांट टू कवर सम कॉन्सेप्ट्स सो दैट वी कैन गेट टू ट्रेडिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है, दिस वाज द सिचुएशन। 100 की स्ट्राइक थी, 95 रुपीज का अंडरलाइन प्राइस था, कॉल प्राइस मैंने 10 पैसे की खरीदी थी, एंड 0 DTE पे 172 का हो गया माल, कॉल प्राइस 72 एक्सपायरी पे। तो जो मैंने 10 पैसे की खरीदी थी वो 72 रुपए की हो गई, राइट। ड्रीम सिचुएशन होती है ऑप्शन बायर की कि यार 10 पैसे का माल मेरा 72 रुपए का हो गया, या मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न आ गया मेरा। तो इस केस में 1 रुपया मैंने दिया था इसके लिए, लॉट साइज मेरा 100 है, 10 पैसा इंटू 100, 1 rupee I paid for this and I got 7200 rupees, right? Had I not delta hedged, this would have been my return. But because I delta hedged, because I was like यार नहीं नहीं मैंने वेरिएंस कम करनी है अपनी, बिकॉज आई डेल्टा हैज, बिकॉज मैंने बोला मैंने अपनी वेरिएंस कम करनी है, मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई। 34 डेल्टा पे हम शुरू हुए थे, मैंने 34 शेयर्स बेचे, मेरा डेल्टा हो गया 0। अगले दिन मार्केट बढ़ी, 40 डेल्टा हो गया, 40 माइनस 34 जो मैं ऑलरेडी शॉर्ट था 6, मेरी पोजीशन डेल्टा थी, मैंने बोला चलो यार फिर बेचते हैं। अगले दिन 40 से 47 हो गया डेल्टा, मैंने 7 शेयर्स फिर बेच दिए। फिर 55 हो गया उसके अगले दिन डेल्टा, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रही है, मैंने 7 शेयर्स फिर बेच दिए। ठीक है, ऐसे करते करते जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रही मैं शेयर्स बेचता रहा, राइट। एंड इफ आई एम सेलिंग ऑन द वे अप, 34 shares I sold at 95, 6 more I sold at 96.9, 7 more I sold at 98। तो बेसिकली जो मैंने 95 पे बेचे थे वो तो मोटे लॉस में हो गए ना जब प्राइस 172 पे आ गई, राइट। सो एज द मार्केट कीप्स गोइंग अप एंड यू कीप सेलिंग, जो तुम्हारा पीएनएल है, जो सबसे पहली शेयर तुमने बेचा था, सबसे पहले तुमने बेचा 95 का, वो तुमने बेचा 34 यूनिट्स। तो 34 शेयर जो तुमने 95 के बेचे वो तो अभी मोटे लॉस में होंगे, राइट। वो वाली सेल तो अभी मोटे लॉस में होगी। आपकी एवरेज सेल प्राइस जो है इज मच लोअर देन 172, राइट, जो मेरी वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम डेल्टा हेजिंग। ठीक है, सो वी क्रिएटेड टू एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफ डेल्टा हेजिंग। वन सिचुएशन इज वेयर द मार्केट इज जस्ट zigzagging एवरी डे,
इस केस में अगर मैं डेल्टा हेज नहीं करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, स्पेशली इफ आई एम लॉन्ग ऑप्शन, इफ आई एम शॉर्ट ऑप्शन इज ग्रेट, आई डोंट नीड टू डेल्टा हेज एट ऑल, राइट। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई अगर मार्केट ट्रेंड करेगी, अगर पागलों की तरह ट्रेंड करेगी और फिर मैं डेल्टा हेज कर रहा हूं, देन आई एम एक्चुअली लीविंग मनी ऑन द टेबल, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल, द वे आई थिंक अबाउट इट इज, I do delta hedge occasionally. I don't do it rigorously every day. जैसे आज की मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ, आज मैंने जो डेल्टा हेजिंग करी है, इनफैक्ट ट्विटर स्पेसेस चल रही थी, ट्विटर स्पेसेस के बीच बीच में ही मैंने डेल्टा हेज करी है आज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, you guys can see this. So let's go to discretionary strategy builder. मेरी जो शॉर्ट पोजीशन है, which I've been carrying for God knows how long, right? ये, अच्छा इसको मैंने आज हेज नहीं किया, मैंने इसको हेज किया। ये जो मेरा लॉन्ग टाइम स्प्रेड है ना, इसको मैंने हेज किया, फिर बाद में रियलाइज किया नहीं करना चाहिए था। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल एक्चुअली। आई होप आई कैन रिप्ले दिस। सो ये मैंने एक टाइम स्प्रेड बनाया हुआ था। जस्ट फोकस ऑन दिस स्टफ गाइस, डेल्टा गामा। दिस वाज माय टाइम स्प्रेड and let's go as this position was evolving. So I've loaded this in the simulator. Let's go. तो देखो guys, अच्छा perfect example here, right? Because I'm short gamma here, I'm short gamma over here. When I put this position on, let's go here. जैसे ही मैंने पोजीशन डाली वैसे ही लॉस लग रहा था। 23,725। सो 23,725 के आसपास मैंने डाली थी। जैसे ही मैंने पोजीशन डाली वॉल बढ़ गई या पता नहीं क्या हुआ, ऑलरेडी लॉस में आ गई है पोजीशन। ठीक है, विक्स 13 पे था उस टाइम। नाउ एज द पोजीशन स्टार्टेड इवॉल्विंग, सो अब मैंने 23,700 के आसपास पोजीशन बनाई थी गाइस। नाउ द निफ्टी वेंट डाउन फर्दर, इट वेंट टू 23,640 एंड यू सी मेरा डेल्टा अक्यूमुलेट हो जा रहा, लाइक आई एम गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर ओवर हियर, राइट? व्हाई इज दैट? बिकॉज आई एम शॉर्ट गामा। सो एज दिस पोजीशन इज इवॉल्विंग, 23,600, आजकल निफ्टी क्या चल रहा है? Does anyone know? बता दो भाई, निफ्टी चैट में क्या चल रहा है? यू गाइस कैन, 23,000 चल रहा है। तो बेसिकली इससे तो काफी नीचे हो गया है ना, 24,000 आया। अब देखो जैसे ही 24,000 तक पहुंचा ये, ओ भाई क्या मूव करा था ये, 1.82% मूव करा था इस दिन। दैट्स क्रेजी मैन, 2 जैन। तो मैं शॉर्ट हो गया, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली अभी, राइट? बट जस्ट मेरा जो गामा है वो ये बोल रहा है कि यार अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं शॉर्ट हो जाऊंगा, मेरा शॉर्ट गामा मुझे ये बोल रहा है, राइट? आगे चलते हैं, वन डे, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अभी मैं, मार्केट फिर नीचे गई, मैं फिर लॉन्ग हो गया। एंड अगर अभी मैं डेल्टा हेजिंग कर रहा होता ना गाइस, तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट अच्छे खासे रिकअप कर रहा होता। मैंने कहा यार मैं झेल लूंगा, इतनी वेरिएंस में झेल लूंगा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। मैंने कहा झेल लेंगे यार वेरिएंस, ठीक है। तो अब एक्चुअली नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, मुझे नेक्स्ट ट्रेड पे ले जाएगा। तो फिर 10 जैन को मैंने कोई ट्रेड डाली, मैंने बोला यार अब डेल्टा मेरा ज्यादा हो गया, एक लॉट के आसपास आना शुरू हो गया मेरा डेल्टा, ठीक है। तो फिर मैंने बोला यार चल इसको थोड़ा रीबैलेंस कर लेते हैं, काफी दूर हो गया हूं मैं जहां जो मैं करना चाहता था, मुझे मेरे पैसे आ रहे थे अभी यहाँ पे,
right? But this was like a call I took. I was like, hey man, let's just delta hedge. Let's just trim our deltas a little bit. So let's look at the upcoming trade. अपकमिंग ट्रेड में मैंने बेसिकली जो लेग्स में मुझे लॉस हो रहा था, राइट, जैसे ये मैंने माल बेचा है, ये 24,000 की पुट बिकेम डीप इन द मनी, सो लाइक लेट मी जस्ट एडजस्ट मैन, लेट मी गेट आउट ऑफ हियर. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोजीशंस इज आई मूव्ड माय स्ट्राइक बैक. सो 24,000 को मैंने क्लोज कर दिया. आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ डेल्टा फ्रॉम हियर एंड उसकी जगह मैंने खोल दिया 23,550, right? So I didn't neutralize my delta. I didn't go delta flat, but I was like, I know I'm getting a lot of delta from this particular position. I want to get rid of this position. इतना डेल्टा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? तो यहां पे मेरा डेल्टा थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया. अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं. अभी हम 14 जैन पे हैं. नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं. आज की ट्रेड है मेरी. तो आज क्या हुआ? अब इसमें पैसे आ रहे हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट आज ज्यादा नीचे चली गई है, 23,000 पर आ गई है. तो इनफैक्ट वो ट्विटर पे एक तन्मय करके है, उसके साथ मेरी ट्विटर स्पेसेस चल रही थी, उस पे बात करते करते मैं मतलब इसको ट्रिम डाउन कर रहा था. एंड सेम चीज मैंने करी यार, जहां पे लाइक आई वाज लाइक फक इट मैन, यहाँ पे लॉस, लेट्स बुक द लॉस हियर, right? I'm not looking at profit and loss of an individual option over here. I'm just looking at my delta. I'm like, hey, I want to trade. I don't want to trade too much. I'm okay taking some delta risk, right? But I'm like, okay, you know what, man? Most of my delta is coming from here, this guy. So let me get rid of this guy and let me rebalance. And that's what I did. So basically, यहाँ पे देख रहे हो guys, I got rid of my 23,550 wali strike. And then I moved it closer to 23,000. You guys are with me? समझ नहीं आ रहा? बोल दो. And I also had the option, I also had the option मैं hedge नहीं भी कर सकता था. तो so this is an example of me. Chat. आई थिंक फेब से ठीक रहेगा. यस टू मी ऊपर से जा रहा है, ऊपर जा रहा है. पता नहीं यार, मतलब मैं तो देखो, मैं द फनी थिंग इज मैंने आप लोगों से पूछा, या प्लीज सायराज, सो आई आस्क्ड यू गाइस कि आई डोंट इवन नो वेयर निफ्टी इज, ठीक है ना? सो आई एम नॉट आई न्यू इट फेल डाउन टुडे, एंड वो भी आई फेल डाउन बिकॉज आई जॉइंड द ट्विटर स्पेसेस. ट्विटर स्पेसेस में बंदे ने बोला कि यार अरे यार ये मार्केट नीचे ही जाई जा रही है. वो अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो देख रहा था उस पर्सपेक्टिव से. मैंने बोला अच्छा कितनी नीचे चली गई? देन आई सॉ एंड आई लाइक चलो आई हैव सम डेल्टा accumulated in this position, let me just get rid of that, right? So and this is a typical profile of a short gamma. As like me, from my experience, I just try to trade as little as possible, but there are some limits where I'm like, okay man, my risk is not where I want it to be, so let's trim it. And it's maybe like if I were short gamma and the market just kept going in one direction or the other, if it just keeps going in one direction, I will hedge. I will be like, let's get out of it, man. इंडियन मार्केट में मोमेंटम जब आता है तो सबको ले जाता है अपने साथ. ये भी मैं बुरे एक्सपीरियंस से कर चुका हूँ, क्योंकि इनिशियली लाइक अ ईयर अगो आई वाज जस्ट लाइक चलो भाई बेच देते हैं, क्या होएगा, वेरिएंस हैंडल कर लेंगे. फिर मैं नहीं हैंडल कर पाया वेरिएंस. अच्छा मोमेंटम दिखा रही थी मार्केट, सो दैट टाइम आई वाज लाइक चलो भाई लेट्स गेट आउट ऑफ द वे. Akshansh, how do you quantify your risk in this trade based on delta? How do you quantify your risk in this trade? So yeah, so what I do is I look at multiple things, right? So
I know that I'm short gamma, so I know I'm always going to be on the wrong side of the market, right? But there is something that's working in my favor, and that takes us to the next part, right? So let me show you the next slide. So I've shown you guys, two examples now of delta hedging. I've shown you three examples. I've shown you two toy examples where one, I'll just recap real quick, and then I'll answer I'll answer both your questions, guys. So एक मैंने टॉय एग्जांपल बनाया था zigzag का. इसमें डेल्टा हेजिंग वर्क ग्रेट फॉर अस, वी वर लॉन्ग ऑप्शंस. ठीक है. इफ वी वर नॉट डेल्टा हेजिंग, हमारा लॉस लगता. यहाँ पे हमारा लॉस, हमारा प्रॉफिट कम हो गया बिकॉज वी वर डेल्टा हेजिंग, राइट. अगर हम डेल्टा हेज नहीं करते तो हम धमाकेदार पैसे कमाते हैं, बट क्योंकि हमने डेल्टा हेज किया तो हमको लॉस लगा. तो ये दो एग्जांपल्स हमने दिखा दिए यहाँ पे. दिस वाज द एक्सेल वाज बिल्ट फ्रॉम द पर्पस ऑफ लॉन्ग गामा, राइट, बट यू जस्ट चेंज द साइंस हियर एंड इट बिकम शॉर्ट गामा. तो ओवर हियर इफ आई वर शॉर्ट गामा and I was not hedging, I would have made 94, ये 94 rupees I would have made if I were not hedging. But because I'm hedging, I would have यहाँ पे जो मैंने कमाया है 374 rupees, if I were delta hedging, I would have lost this money, right? So I wasn't very like, in this case, this is an algo, it's just hedging based on that algo. Delta hedging is just based on that algo over here, right? So in this case, if you were short gamma, you would have, ये जो तुम्हारा सारा hedging P&L would have been the same, it would have been negative, right? In this case, because I'm long gamma, I bought the call, this part is positive. So I hope that's clear, and let me now go back to the presentation, and then let me also address your question. So अरे जूम के ना hover करते रहती है विंडोज. So how do you quantify your risk in this trade based on delta? So delta is certainly one part of the risk, right? I know that I knew that I was short gamma, right? Because I was short gamma, I knew that delta will always work against me in this case. Gamma will work against me and it always give me the delta that I don't want, right? But at some point, because I'm taking that gamma risk, I get a little bit of compensation for it, and that comes through theta. Okay. If you have short gamma, you will invariably have long theta. Okay. The market will pay you to take that short gamma, and that comes through this theta. The option buyer essentially pays theta to have that gamma. Okay. Theta goes crazy as you get closer and closer to expiry. The same way gamma goes crazy as you get closer and closer to expiry. So yes, I have a sort of limit जहां पे मैं बोलता हूं कि यार at some point my position stops looking like a volatility trade and it starts looking like a delta trade. That's when I say I want to trim my delta. So that's one way to manage risk over here, right? That's one way of looking at risk in this particular trade. Quantification of delta, yes, is going to be one way of looking at that risk. The second thing is कि if I'm getting paid, कितना डेल्टा. यार देखो ये ना सबके अपने अपने ऊपर होता है, ठीक है ना. अब मैं तुमको बताता हूँ कि like a lot of people, like I know you guys want कि मैं बता दूं तुमको यार 20 डेल्टा से ऊपर जाएगा तो तुम ट्रिम कर लो, ठीक है ना. बट ये एक ऐसी सब्जेक्टिव चीज है in our case कि like in discretionary world, it's you could even like in discretionary world, like थोड़ी फील आ जाती है मार्केट की. of course मैं ये नहीं बोल रहा कि
आपको भी फील आ रही है नहीं आ रही है, बट मोर देन दैट मैं लाइक आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग डेल्टा ओवर, आई एम जस्ट सेइंग कि यार हाँ, जैसे आपने बोला कि मैंने यार 0.35 लास्ट फुल ईयर सिमुलेटर पे डाला था, तो 35 डेल्टा के ऊपर मैं ट्रिम करूंगा, राइट। बट डेल्टा एक ऐसी डायनामिक चीज है कि वॉलेटिलिटी चेंज होती है, डेल्टा चेंज हो जाता है मेरा। सो सो थिंक अबाउट इट दिस वे कि आफ्टर अ सर्टेन लेवल, if delta goes beyond a certain limit, that's when you at least need to start paying attention कि यार am I comfortable with this? एंड जब तुम hedge करते हो तो are you going to be like कि चलो यार I'm gonna hedge all the way to zero, मैं इसको बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दूंगा, या मैं बोलता हूं चल यार नहीं, मैं इसको I'll just अगर मैंने 5 लॉट की पोजीशन बनाई है तो एक लॉट काट के एक लॉट आगे एडजस्ट कर देता हूं। तो एंड बोथ हैव देयर ट्रेड ऑफ्स, there's really no right or wrong answer here and I can't give you a number क्या इतने पे आएगा तो एडजस्ट करो। I know लाइफ में इतना इजी नहीं होता ये डिसीजन मेक करना, राइट। बट इतना ये जरूर जानो कि अगर तुम डेल्टा हेज बिल्कुल भी नहीं करते एंड तुम्हारी वॉलेटिलिटी एस्टिमेट करेक्ट है, तो लॉन्ग रन में यू विल मेक मनी, तुम्हारी स्विंग्स अप एंड डाउन होंगी, राइट। अनदर सॉर्ट ऑफ थिंग वाज के कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे आ रहे होते हैं तो तुम बोलते हो यार मैं क्यों क्यों चेंज करूं मेरा डेल्टा। जैसे आज की डेट में क्या हुआ, लाइक दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर डिसिप्लिन कम्स इन, राइट। सो आई वाज डिसिप्लिन टुडे। लेट्स गो बैक टू माय पोजीशन। सो आई कुड इजीली हैव सेड कि यार पैसे आ रहे हैं, हो सकता है मार्केट फिर रैली कर जाएगी मंडे को, एंड हो सकता है इट्स entirely possible that the market will open on Monday, and it will be gap up or something like that, right? So I could have easily been like अबे छोड़ना है यार कोई नहीं, क्या ही करना। बट माई डिसिप्लिन सेट के मैन लाइक आई एम गेटिंग वेरी क्लोज टू वन डेल्टा ओवर, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू बी क्लोज टू बीइंग लॉन्ग वन फ्यूचर। मेरा जो पैसा आ रहा है ना, मेरा पैसा यहां से आ रहा है, वेगा से आ रहा है मेरा पैसा, तो मेरे को अपना वेगा एक्सपोजर रखना है, मेरे को डेल्टा से कोई पैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे, मुझे कोई मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रही फॉर टेकिंग दिस डेल्टा रिस्क, ठीक है। द मार्केट इज रिवॉर्डिंग मी टू टेक दिस वेगा रिस्क एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। सो दैट्स अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट कि माय रिस्क एक्सपोजर इज गोइंग बियॉन्ड व्हाट आई वांट माय पोजीशन टू बिहेव, हाउ आई वांट माय पोजीशन टू बिहेव, राइट। सो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस गाइस, मैं इसको खत्म करना चाहता हूं सो दैट वी कैन एक्चुअली गेट टू ट्रेडिंग। नेक्स्ट वीक नहीं होएगा बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होएगा, बट आई वांट टू फिनिश दिस, ठीक है। सो थीटा इज जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स मैन, लाइक यू नो के बेसिक चीज है थीटा, देयर इज नॉट लॉट ऑफ इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स ओवर हियर, यू जस्ट लाइक यार बायर है वो थीटा पे करेगा, सेलर है वो थीटा कलेक्ट करेगा, जैसे जैसे आप जीरो डीटी में आते रहते हो वैसे वैसे आपका थीटा बढ़ता रहता है, राइट। ये एंड वील लुक एट दिस थीटा अगेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा वेगा है, वेगा मेरे को बता रहा है यार कि आई हमारे आर पीएनएल डिपेंड्स ऑन आईवी, राइट। आईवी एंड आरवी पे डिपेंड करता है हमारा पीएनएल। तो वेगा बस हमको ये बता रहा है यार कि अगर आईवी में अगर कोई चेंज आता है, मूव्स अप 1% नहीं 1 पॉइंट होना चाहिए, मैं पॉइंट बोलता हूँ इसको, 1 पॉइंट, तो बेसिकली 20 वॉल से अगर 21 वॉल हो जाएगा, राइट, तो ऑप्शन की प्राइस ऐसे चेंज हो जाएगी, न्यू प्राइस इज ओल्ड प्राइस प्लस 1 into वेगा। Let me show you this in the strategy builder. It's the easiest to show you there. थीटा पे मैंने इतना टाइम इसलिए नहीं स्पेंड किया क्योंकि सबसे बोरिंग ग्रीक है थीटा, कोई उसकी इनसाइट वगैरह नहीं है भाई। मतलब बस ये है तुम यार आ, खरीद रहे हो तो पे कर रहे हो, एंड मतलब लोग बोलते हैं मैं थीटा कमा रहा हूँ, एक्चुअली तुम थीटा नहीं कमा रहे, तुम वेगा कमा रहे हो, एंड मैं भी बताऊंगा तुमको क्यों। नई पोजीशन बनाते हैं आपको, न्यू स्ट्रैटेजी, ठीक है जी, नई पोजीशन बनाई है मैंने। मैं चाहता हूं
27 Feb, लेट्स सेल अ straddle. यहां पे मेरे को बता रहा है मैं शॉर्ट 4200 रुपीज का वेगा हूं. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? वेगा मेरे को बताता है कि यार अगर ऑप्शन, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मूव्स अप बाय 1 पॉइंट, तो जो प्राइस है मेरी ऑप्शन की वो ज्यादा महंगी हो जाएगी, राइट? इफ इट गोज डाउन बाय 1 पॉइंट, मेरी प्राइस सस्ती हो जाएगी. तो लेट्स ओपन सिनेरियो एनालिसिस. एंड यहाँ पे आईवी ऑफसेट का हमने एक टॉगल दे रखा है. ठीक है, अभी आईवी ऑफसेट का टॉगल दे रखे हैं, तो इसमें मैं बोलता हूँ चल यार मैं आईवी बढ़ाता हूँ 1 पॉइंट. तो जहां पे मेरा 760 रुपीज का M2M पॉजिटिव दिखा रहा था, वहां पे मेरा 760 माइनस 4200, 3400 का मेरा लॉस आ रहा है, राइट? तो अगर विक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, विक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी जो ऑप्शन पोजीशन है वो लॉस दिखाना शुरू कर देगी. ठीक है, इसको और बढ़ाते हैं. जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ये जो मेरा वेगा यूनिट है, आ, हर 1 पॉइंट इंक्रीज इन वॉल से मेरा पीएनएल उतना ही लूज हो रहा है. एंड वर्क्स इन दी अदर डायरेक्शन ऑल्सो. इस केस में मैं शॉर्ट वेगा हूं, राइट? मैं शॉर्ट वेगा हूं, वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा था मैं. अब मैं शॉर्ट वेगा हूं, मैंने ऑप्शन बेच रखे हैं, एंड वॉलेटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है, मेरे पैसे आने लग जाएंगे. कुछ मूव नहीं हुआ, बस वॉलेटिलिटी गिर रही है भैया, आईवी गिर रही है, मेरे पैसे बनना शुरू हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज वेगा. इट वर्क्स इन माई फेवर इफ आई एम. लॉन्ग लेके देखते हैं. लॉन्ग ले लिया मैंने, अब ऐसा ही होएगा. सेम 4200 वेगा में लॉन्ग हूं, प्लस हो गया मेरा साइन, राइट? तो वॉल एक एक पॉइंट मूव करेगी. देखो मैंने यहाँ यूनिट भी डाल रखा है रुपीज, वेगा का यूनिट रुपीज में डाल रखा है, राइट? तो ये पोजीशन होल्ड करने के लिए मैं 1000 रुपए डेली पे कर रहा हूं थीटा डिके में. ठीक है, उन 1000 रुपए का मेरे को इतना गामा मिल रहा है. तो ये मान के चलो जब मैं थीटा पे करता हूं तो मेरे को गामा मिल रहा है उसका. दुकान में गए, आपने बोला मैं इतना दूंगा हर रोज, वो इतना आपको गामा मिलेगा. थीटा का आपको मिल रहा है गामा. एंड वेगा मेरे को बता रहा है कि भाई अगर आईवी में मूव आएगा अप डाउन, तो मेरा M2M कैसे चेंज होएगा. M2M क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मेरी प्राइस चेंज हो रही है. यहां पे हम नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे उसको, बट एज आईवी इंक्रीजेस द प्राइस इज इंक्रीजिंग. एंड नेचुरली बिकॉज वी हैड बॉट, हमने माल खरीदा, प्राइस बढ़ गई, मेरा M2M बढ़ना शुरू हो गया. दैट इज वेगा. Everybody good on that? So, to answer your question again, Akshansh, answer your question again. Let me see your question once again. How do you quantify your risk in this trade based on delta? Right. So, see, I was short gamma. I was, if I'm short gamma, I'm collecting theta. So let's go back over here. I'm short gamma. I'm collecting theta. I don't want delta exposure because I'm not getting paid to take delta exposure. In the risk premium, volatility risk premium, जिस एज को हम कैप्चर कर रहे हैं उसमें आई एम गेटिंग पेड टू टेक वॉलेटिलिटी रिस्क. So I want to have as much Vega exposure as possible. ठीक है, I want to have Vega exposure. I don't want any other exposure. But unfortunately ये मुझको लेना पड़ेगा. डेल्टा को मैं ट्रिम कर सकता हूं, गामा एंड थीटा मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन के साथ आता ही है. दिस इज द मेसी थिंग अबाउट ऑप्शंस, राइट? बट मेरा इंटेंशन हमेशा ये है कि भाई मेरे को यही चाहिए, मेरे को वेगा एक्सपोजर ही चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम बीइंग पेड फॉर. सो वट एवर इज गेटिंग मी टू अ स्टेज. सो अब ग्रीक्स में देखते हैं, यहाँ पे सिनेरियो एनालिसिस फिर से खोलते हैं और बोलते हैं कि चल यार, अब देखो अगर स्टॉक मूव करना शुरू हो जाता है, सो आई एम मूविंग द स्टॉक एंड मेरा वेगा एक्सपोजर कम होने लग गया. ठीक है, मेरा डेल्टा भी खराब हो गया. तो इस केस में मैं बोलूंगा यार, वन somebody what somebody can think is somebody will be like अरे यार, शायद मार्केट वापस नीचे आ जाएगी. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन, यार मे बी मार्केट वापस नीचे आने लग जाएगी. वी डोंट वांट टू से दैट.
राइट, लाइक वी आर नॉट डेल्टा गाइज। तो एक तो मैं बोलूंगा मेरा रिस्क आ गया यहाँ पे, और मेरा एक्सपोजर भी नहीं है अब यार। जिस चीज में मैं जो चीज मेरे को चाहिए, मेरे को वेगा पे एक्सपोजर चाहिए। 4,000 वेगा के एक्सपोजर पे मैं शुरू हुआ था, 1,500 रह गया है। तो बोलूंगा यार इसको रीबैलेंस करो अब। फॉर टू रीजंस, वन इज माई रिस्क बट द अदर इज माई रिवॉर्ड, right? So that's how you want to think about it if you're trading options with a volatility lens. You have an opinion on volatility, and we'll always have an opinion on volatility. We'll always be short volatility on average because of the existence of that VRP that we discussed in the previous lesson, right? So we want this Vega exposure. Another interesting thing that comes from this Vega exposure, right? यहाँ पे तो ये रिस्की पोजिशन है, राइट, जोड़ा बेचा हुआ। बट इफ आई एम पुटिंग दिस पोजिशन ऑन, समटाइम्स व्हाट आई डू इज यार मैं 20 डेल्टा का ऑप्शन बाय कर लूंगा, या 30 डेल्टा का मैं ऑप्शन बाय कर लूंगा। मैं इसको आयरन फ्लाई बना दूंगा, राइट? या आई पर्सनली प्रेफर आयरन कॉन्डोर्स मोर देन आयरन फ्लाइज। तो मैं बोलता हूँ चल यार 40 डेल्टा का बेचता हूँ। ये मैंने 40 डेल्टा का बेचा, बाय कर दिया क्या, नहीं, सेल। ये मैंने 40 डेल्टा का बेचा, 40 डेल्टा की स्ट्रैंगल बेच रहा हूँ मैं, और फिर 20 डेल्टा की स्ट्रैंगल खरीद रहा हूँ। 20 थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गया एक्चुअली। यहाँ पे बोलता है चल यार 10 डेल्टा की स्ट्रैंगल खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव वेगा एक्सपोजर, ठीक है, बट आई एम हेज्ड। आई एम लाइक चलो यार, मेरा मैक्स लॉस इज 53,000 रुपीज, मैक्स प्रॉफिट इज 40,000 रुपीज। सो आई एम comfortable putting this position on, and I'll delta hedge as and when I need to, right? But I'm still short gamma here. I'm collecting less theta now because I'm paying theta for these options that I just bought, right? एंड मेरा वेगा एक्सपोजर भी कम हो गया क्योंकि इन ऑप्शन से जो मैं खरीद रहा हूं, मेरा वेगा एक्सपोजर ज्यादा आ रहा है। राइट, व्हेन आई बाय ऑप्शंस आई एम पॉजिटिव वेगा, व्हेन आई सेल ऑप्शंस आई एम नेगेटिव वेगा। अब मेरे को बताओ, ट्रिक क्वेश्चन है ये, कि मेरा एक्चुअल में मैक्स लॉस कितना हो सकता है इसमें? कैन आई हैव अ लॉस मोर देन 53,000? मैंने दिया है पूरा लॉस। हाँ, 53,000 से ज्यादा कब होएगा लॉस? अभी बनाते हैं। तो ये भी वेगा का डेंजर है। सॉरी, सिग्नल चला गया था। आई वांट टू से 53,000 से ज्यादा कैसे दिया था? सॉरी, इंटरप्टिंग इन द क्लास। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, व्हाट आर यू मैंने सेइंग? कैसे दिया था? मैंने वो से ज्यादा का पता कैसे दिया था? एट द वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट मैंने अपनी ट्रेड काट दी थी, जब मेरे हेजेस जो हैं, हेजेस बढ़ नहीं रहे थे और मेरी शॉर्ट कॉल्स में नुकसान बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मैंने पैनिक एंड प्रेस द एग्जिट बटन। या या एग्जैक्टली राइट। तो मतलब द कल्प्रेट हियर इज वेगा, ठीक है। अब क्या होता है जब आईवी बढ़ती है, हमने देखा है गाइस, देखो हर ऑप्शन की अलग अलग आईवी है यहाँ पे, राइट? नॉट ऑल ऑप्शंस हैव द सेम आईवी। सो व्हेन आईवी चेंजेस, then the changes will also not be uniform across different options, right? अगर आईवी 10% बढ़ती है, तो सिनेरियो एनालिसिस में तो हमने बहुत सिंपल कर रखा है। हमने बोला यार ये पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, ऑल आईवीज आर इंक्रीजिंग बाय 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे कर रहे हैं हम, राइट? बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होएगा कि इनकी आईवीज बढ़ने लग जाएंगी और इनकी आईवीज चेंज ही नहीं होंगी। तो वो हम इसमें मेरे टूल में कैसे कर सकते हैं? आई थिंक ऐसे फॉरवर्ड टेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो मैंने फॉरवर्ड टेस्ट किया, यहाँ पे मेरे आ गया। आई गेस मैं आईवी नहीं चेंज कर सकता, पर मैं प्राइस को जरूर चेंज कर सकता हूँ, राइट? अगर आईवी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो अब मान के चलो कि यार ये बढ़ने शुरू हो गई प्राइसेस। अच्छा, एक करंट प्राइस दिखा रहा है, सॉरी, बोल देते हैं 200। मान के चलो मैंने 200 पे बेचा, 200 पे बेचा। एक्चुअली इस टूल में मैं नहीं दिखा सकता, दैट्स अ प्रीटी गुड फीडबैक फॉर मी, because I can't change the current price over here. Nice, nice. So anyway, this, let me just clear everything. एक second.
and let me go back to new strategy. Triangle बेचा मैंने, and sorry, let me just set this up again, guys. But this is one of those things, you know, where we think we are hedged, but we may not actually be hedged. So let's create this triangle again. And let's buy this 10 delta का, 30 delta का, चलो 13 delta का triangle ले लेते हैं, so that we are somewhat delta neutral. ठीक है. अब यहां पे अगर इनकी आईवीज बढ़ना शुरू हो गई एंड इनकी अनचेंज रही, या these started increasing faster than the increase in these, right? Then all of a sudden your PNL will start like this. ठीक है. On expiry, this is on expiry, yes, 42,000 is your PNL, right? Your max PNL, max loss is 42,000 on expiry, right? But before expiry a lot of things can happen. VIX 80 पे पहुंच गया, and these start moving much faster than this, then all of a sudden this position will start showing a much bigger loss, right? So that is the answer to the question. That is the answer to the question कि यार अगर मेरा मैक्सिमम लॉस 42,000 रुपीज है यहाँ पे एक्सपायरी पे, तो एक्सचेंज मेरे से 1,28,000 का मार्जिन क्यों ले रही है? Why not just take the max amount that I'm allowed to lose, right? And this is the reason, man, if IV start increasing over here, or the IV start increasing in a non-uniform manner across the volatility surface, across all these different strikes, then you can technically show a loss of more than 40,000 rupees, right? At least. But ये है कि if you can fund the position until expiry, तो एक्सपायरी पे इससे ज्यादा लॉस नहीं होएगा तुम्हारा अगर तुम पोजीशन काटते नहीं हो, राइट? लेकिन एक्सपायरी से पहले M2M में तुमको जरूर लॉस दिखा सकता है. आई होप दैट मेक्स सेंस. नहीं समझ में आया तो पूछ लो. आज थोड़ा खींच रहा हूं मैं क्लास को. तो ये था मेरा वेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. ये ना एक बड़ी ही आई कैन शो यू द